Okay, so try to note down whatever important information I'm sharing. Although I'm going to share this PDF also with you. And एक बार ये बुक से हो जाए फिर अनुश्री वाले बुक से भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ, इससे पहले तो कोई एक्सरसाइज नहीं थी ना? No, sir. This is the first exercise. Okay. Okay, let's start. First, I'm going to ask Kea. The temperature of a substance remains unaffected during its change of state. So remember that part, the third video. Actually ये सब change of state मैंने third video में सिखाया था. Change of state में temperature constant रहता है या नहीं रहता है? True or false? किसी को याद है? Sir, Yes. false. Okay. So do you remember that part where मैंने बताया था कि एक बीकर में वाटर से अगर मैं उसको हीट करता हूँ, ठीक है, और अंदर मैं थर्मोमीटर रखता हूँ, तो ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे एंड इट विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट बॉइल्स, जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बट आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस विल इट्स टेम्परेचर चेंज? Will it increase? No, sir. So what is happening when the temperature is 100 degrees Celsius with this water? Sir, the water gets evaporated. Yeah, so it changes its state, Okay. right? तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना तभी. Yes. चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट. इट रिमेन्स कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा. चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर सेम रहेगा. सो ये ट्रू है, ठीक है? आई वुड लाइक टू आस्क अनुश्री. Yes, sir. अनुश्री, अगर मेरे पास एक बकेट में आइस है, ठीक है, इफ आई हैव अ बकेट फुल ऑफ आइस क्यूब्स, और इसके अंदर मैं एक थर्मोमीटर रखता हूं. सपोज आइस का टेम्परेचर इनिशियली -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड आई स्लोली स्टार्ट हीटिंग दिस आइस फ्रॉम बिलो, Okay. ठीक है? व्हाट चेंजेस विल यू सी इन द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर? व्हाट आफ्टर -5 व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर? So the temperature will be hot. The temperature will increase. Yes. Yeah, and it will become how much? How much will it become? Um. 0 degrees Celsius. Okay. At 0 degrees Celsius, you know what happens? What is 0 degrees Celsius? Sir, no idea. It is melting point of ice. Okay. Hey, I covered everything. How you don't have idea?
You want me to teach everything again? I can do that. Because I think this is not working out yet. You want me to teach you everything again? But it's the same thing. Only thing that I'm going to teach you live. What I wanted is that you guys first understand what is the basics and then come and discuss with me so that we can actually discuss your doubts. If you want me to teach again and then after that discuss the doubt, it will take a very long time. I'm ready to give it, but then it will be very I don't know, means are you able to learn from the video at all? I'm really worried. Kea, you don't know the answers to the exercise of your own textbook. ये सब आंसर तुम्हें पता नहीं है क्या? Sir, we didn't solve it in the school. You didn't solve it in the school, it doesn't matter. Did you see the video which I sent you? Yes, sir. It has the same thing, everything is same. It has everything. Did you take notes? Yes, sir. Definitions and some important things. What is latent heat of vaporization? Sorry? Latent heat. Latent? Latent heat. Um, This is your book, na, Kea? yes. This is latent heat of vaporization. Heat absorbed for vaporization. I explained it. तो कैसे करना है अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है. फिजिक्स दोनों का कुछ टॉपिक्स अलग हैं बट बोथ आर नॉट रेडी विथ. अच्छा चलो मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि अनुश्री, लेट्स स्टार्ट विथ यू. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. चल, let me see how much you are prepared with, huh? Okay. Do you remember that we have done this arrangement of molecules in matter or kinetic theory of matter? Yes. Okay. तो ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. Yeah. Can you explain this? Solids have a definite volume and definite shape. Explain on the basis of kinetic theory of matter. Why do solids have definite volume and definite shape? Yes, sir. Yeah. The solids have a definite volume and a definite shape because the molecules of solid increases when the temperature increase. No, that is not the reason. Sir, and it has less intermolecular space. Okay. Intermolecular spaces are less. ये नंबर 1 रीजन है. ठीक है, ये हो गया. Yes. नेक्स्ट रीजन. Next. Intermolecular
forces of attraction is maximum. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के बीच में, स्पेसेस मिनिमम होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। ये दो मेन रीजन है। इसकी वजह Okay. से सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। हेंस द पार्टिकल्स of solids are tightly packed. Hence, the particles of solids are tightly packed and do not leave their spaces. Particles of solid tightly packed होते हैं और अपनी spaces को छोड़ते नहीं हैं, and that's why you can say that solids have definite shape and definite volume. Okay. So can you similarly explain why liquids have a definite volume but no definite shape? Liquids have definite volume but not definite shape. Volume. Sir, because in liquid the intermolecular space is more. Okay, and why they don't have definite shape? Definite shape. Sir, because intermolecular force of attraction are less. Okay, less than as compared to. Solids. Okay. And more than gases. Okay. Kea, we'll do one thing. Kea, are you there? Yes, sir. Let me finish the chapter with her first, and then I will do it with you separately. Okay, sir. Okay, shall we do that? Okay, sir. Okay, so you can leave. I will teach Anushri right now. So when should I join the class? I will tell you, not today, maybe in the next class, or maybe I will take extra class for you. Okay. But you just prepare the basics, okay, of your chapter. Otherwise, I have to teach everything from zero. Okay, sir. Okay, start. Bye, sir. अनुश्री, Yes, sir. हम लोग शुरुआत से करते हैं, ठीक है। मैं तेरे को सब समझाता हूँ और फिर मेरे को पूरा रेडी चाहिए ये, ठीक है। तो देखो, अभी समझो इस बात को। मैंने कल ही शुरुआत किया था, मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वो मैटर होता है, राइट। Yes. मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स बने एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मींस। जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयन, ये सब एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और सबसे छोटा यूनिट जो एलिमेंट का होता है वो होता है एटम। एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता भी है, नहीं भी दिखाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता ही है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, you know what is the chemical formula for water? Yes, sir. H2O. तो H2O किससे बना है? Molecules. हाँ, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और यहाँ पे मैटर क्या है? वाटर। वाटर इज द मैटर।
तो वाटर का सबसे छोटा यूनिट होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिक होती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज एन एटम। एटम एंड मॉलिक्यूल तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है। अच्छा, तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। सबसे पहला है कंटिन्यूअस मोशन। नाउ रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, दे आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है। अगर वो एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स हर जगह पे वो कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते कहीं भी सॉलिड के अंदर, बट दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। हाँ, बट इसी को हम लोग कंटिन्यूअस मोशन बोलते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस मोशन इन द मॉलिक्यूल्स एंड दे डू नॉट स्टॉप ओवर एनी लेंथ ऑफ टाइम। वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। So now my question is to you, Anushri, that which of the three molecules will have the maximum kinetic energy? Which of the three molecules will have the maximum kinetic energy? यहाँ पे first is gases, second is solids, and the third one is uh, third one is liquids. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तीन टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव। सॉलिड्स में दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। और लिक्विड्स में दे आर फ्री टू मूव विद इन लिक्विड के अंदर ही वो फ्री मूव कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते लिक्विड से। यहाँ पे तो कोई सरफेस है ही नहीं, तो वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है। तो Yes. यू हैव टू नाउ कंपेयर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तीनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एक्चुअली मैं एक ये सॉलिड्स को साइड में कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना। Yes. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट वन साइड, लिक्विड को मैं बीच में लेके आता हूँ। ठीक है, एंड आई विल जस्ट, ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले वी विल कंपेयर दीज थ्री, gases, Yes. liquids and solids, in context of number one, intermolecular spaces। गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस
कैसी होती है? योर आंसर इज मैक्सिमम, मिनिमम? Maximum. Okay, intermolecular spaces are maximum. Max. In solids? Minimum. Very good. तुम्हारे सारे आंसर्स ना इसी के ऊपर बेस्ड है, याद रखना. और लिक्विड में? Liquid में less. लेस देन? Less than gases and more than solids. वेरी गुड. लेस देन गैसेस या फिर मोर And देन सॉलिड्स. solid. मतलब इन बिटवीन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होगा इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी उनका. सेकंड प्रॉपर्टी, इंटर molecular forces of attraction. intermolecular forces of attraction. गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है. इनके पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं. उनको तुम्हें बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन होगा, किसमें कम होगा और किसमें सबसे कम होगा. गैसेस में कैसा होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? Forces of attraction minimum. मिनिमम. वेरी गुड. लिक्विड्स में? Liquids में medium. मोर देन गैसेस, है ना? मोर देन गैसेस ही होगा ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एंड व्हाट अबाउट Yes. सॉलिड्स? A maximum. वेरी गुड. यहाँ पे मैक्सिमम होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय मूविंग पार्टिकल्स. किसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी, गैसेस, सॉलिड्स या लिक्विड्स? Gases. गैसेस में मूवमेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी गैसेस की? Maximum. मैक्सिमम. वेरी गुड. एंड लिक्विड्स में? More than solids. लेस देन गैसेस लिखूं तो चलेगा ना? हाँ, yes. यस. और सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? Minimum. मिनिमम. वेरी गुड. See, you are doing it. What you are doing, you know, what is this known as? This is known as kinetic theory of matter. इसको तुम नोट कर लेना और इसका नाम देना काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर on the basis of 3 states of matter. मैटर के 3 स्टेट्स के ऊपर बेस्ड जो काइनेटिक थियरी है, ठीक है, उसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे. एंड उसके काइनेटिक थियरी के जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है? दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. Yes. ओके, नेक्स्ट. ओके, ये तो सारा हो गया. ओके, अब जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, Yes. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, उसका यहाँ पे रीजन बताता हूं तुम्हें. देखो, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड. ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और मैक्सिमम. ठीक है. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से द मॉलिक्यूल्स एट वन पर्टिकुलर प्लेस आर फिक्स्ड इन इट्स पोजिशन. द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड इन इट्स पोजिशन. ठीक है. इसी के लिए सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो तुम्हें सारी चीज बोलनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, व्हाट यू विल से? The molecules of solids are tightly packed. वेरी गुड. They have less intermolecular space वेरी गुड. and
more intermolecular force, forces of attraction. forces of attraction. Very good. They have fixed position. Because of maximum intermolecular forces of attraction, molecules are fixed at one place. Repeat, Yes. repeat, And repeat. because of more intermolecular forces, molecules of solids are fixed in a position. Very good. And therefore, the solids have definite shape and definite volume. Therefore, solids have definite volume and definite shape. वेरी गुड. एंड अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाई आर सॉलिड्स जनरली रिजिड एंड हार्ड? सॉलिड रिजिड और हार्ड क्यों होते हैं? तो सेम है, सेम चीजें लिखना है. मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत छोटी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और इसी के लिए इट इज डिफिकल्ट टू टेयर देम अपार्ट, एंड दैट्स व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड. मतलब सॉलिड्स के पास डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप का रीजन, और सॉलिड्स रिजिड और हार्ड होने का रीजन एक ही. सो इट इज वेरी इजी टू राइट एनी गिव रीजन बेस्ड ऑन सॉलिड्स. सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर बेस्ड गिव रीजन लिखना बहुत इजी है, क्योंकि उसमें कुल मिला के 4 चीजें तुम्हें बतानी है. क्या 4 चीजें? 4 चीजें भी नहीं है. ये एक टाइटली पैक्ड वाला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वेरी स्मॉल 2, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लार्ज 3. ये 3 रीजन दोगे ना, तो सॉलिड की कोई भी प्रॉपर्टी तुम एक्सप्लेन कर पाओगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके. नेक्स्ट, लिक्विड. अब लिक्विड भी सेम चीज है, सेम सेम सेम, बट इसमें लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है. इसमें क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लार्ज, so molecules attract each other with a lesser force. Intermolecular force of attraction is less. Because of less force of attraction, molecules do not stay at one place, they interchange their position. ठीक है, and that's why they take the shape of the containing vessel. मतलब उनका फिक्स शेप नहीं होता है, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स. इधर जगह चेंज करने के लिए कोई जगह है क्या? जस्ट इमेजिन करो अनुश्री, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, उसमें लोग ऐसे टाइटली भरे हुए, अपनी लोकल ट्रेन होती है ना मुंबई की, देखा है क्या तुमने? Yes. इतने टाइटली भरे हुए लोग कि एक आदमी दूसरी जगह जा भी नहीं सकता है. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इतनी कम है कि एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह जा ही नहीं सकता. तो अपना शेप चेंज करेगा क्या? No. नहीं, उसका शेप डेफिनाइट होगा. लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता. ये मॉलिक्यूल यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये कभी इधर आ जाएगा, ये कभी इधर आ जाएगा. ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन है. मोशन कम है, इतना गैसेस जैसा नहीं है, लेकिन है, फिर भी है. और इसीलिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक जगह पे नहीं रहते, वो अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई they take the shape of the containing vessel. They do not have a fixed shape. ठीक है, but सबसे important अनुश्री, as the number of molecules in a given liquid remains the same, therefore they have definite volume. वॉल्यूम क्यों डेफिनाइट है? क्योंकि इधर अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे इतनी स्पेस में, तो कितना भी इंटरचेंज कर ले अपनी जगह यहां से वहां, लेकिन आफ्टर ऑल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 100 ही रहेंगे. Number of molecules do not change, and that's why they have fixed number of molecules in a given space, and that's why they have definite volume. उनका वॉल्यूम सेम रहता है. अभी समझ में आया? Yes. लिक्विड का. ठीक है, और सेम लास्ट है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. ये इसको बोलते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर में मिला जुला के किसकी बात करते हैं? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी. सिर्फ इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हारी बुक में दी गई है, वो क्या है? ये फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ अधेशन, और ये टेम्परेचर वाला. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी डिक्रीज करने से टेम्परेचर. सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है एग्जैक्टली.
ठीक है, और ये Yes. सेम चीज मैंने वीडियो में भी बताई है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ सो दैट व्हेन आई आस्क यू यू शुड बी एबल टू गिव मी प्रॉपर आंसर। ठीक है, गैस में Yes. क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट, इतने दूर होते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, दे हार्डली अट्रैक्ट ईच अदर। इसको साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं पता है, नेग्लिजिबल फोर्स, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इतनी ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल मूव फ्रीली। इतना फ्रीली मूव करते हैं कि गैसेस के पास ना तो डेफिनेट शेप होता है ना तो डेफिनेट वॉल्यूम, तो दे कैन फिल द एंटायर स्पेस इन विच दे आर एनक्लोज्ड। सो ये हो गया तुम्हारा गैसेस का। ठीक है, अब हम लोग इसको, ये टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल में और क्या क्या लिखना है हमें, नंबर 4 शेप, गैसेस का शेप बताओ। Gases का shape tightly packed. नहीं नहीं, No. गैसेस में कहाँ टाइटली पैक, नो डेफिनेट Not. शेप, गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का शेप, Take shape of container वेरी or that गुड vessel. वेरी गुड, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, लिख लेना, वेसल या फिर कंटेनर। और सॉलिड्स का शेप बताना। Solids also take the shape of that. नो, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, उनको कंटेनर से कोई लेना देना नहीं। तुम एक Okay. सॉलिड को कंटेनर में रखो, उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसको खुले में रखो, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड शेप। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिड मतलब क्या, जो फ्लो नहीं होता ना उसको रिजिड बोलते हैं, जो एकदम हार्ड होता है। ठीक है, गैसेस Yes. में बताओ रिजिडिटी होती है क्या गैसेस में, No. नॉट रिजिड। ठीक है, लिक्विड्स में आर दे रिजिड, नो, No. दे कैन फ्लो इजीली। लिक्विड, वो तुमने देखा होगा पानी भरते हैं ना बलून में, कैसा होता है वो, एकदम सॉफ्ट होता है। और व्हाट अबाउट सॉलिड्स, They are rigid. दे आर रिजिड, वेरी गुड। तो शेप हो गया, रिजिडिटी हो गया। नेक्स्ट और एक मैं तुम्हें एक्स्ट्रा देता हूं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कोई चीज कितनी हैवी है वो उसकी डेंसिटी बताती है। ठीक है, हाउ हैवी वन थिंग इज। गैसेस के पास डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी के पास होती है, Lightweight. कैसी होती है गैसेस के पास डेंसिटी, Lightweight. या दे आर लाइट वेट, तो डेंसिटी लेस। ठीक है, लिक्विड के पास डेंसिटी कैसी होती है, Medium. मोर देन, मोर, More than gases. यस, Less than लिक्विड्स आर solid. मोर हैवियर देन गैसेस। एंड सॉलिड्स के पास डेंसिटी कैसी होती है, More. मैक्सिमम, मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्लियर हो गया। Yes, sir. काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर समझ में आया, Yes. ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट, सी नेक्स्ट है तुम्हारा सरफेस टेंशन। तुमने किसी भी लिक्विड का सरफेस देखा है जो एक कंटेनर में होता है, Yes, sir. उसके सरफेस को देखना, एक्सपोज सरफेस कैसा बिहेव करता है पता है, जैसे कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। ये देखो, ये मैंने वीडियो में भी दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। Yes. ये है मर्क्यूरी का सरफेस और ये है वाटर का सरफेस। ठीक है, ये देखो, तो कोई भी लिक्विड का सरफेस ऐसा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, Membrane. मेम्ब्रेन मतलब सरफेस, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है,
सरफेस। ये सरफेस में जो खिंचाव होता है ना, खिंचाव, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे एक रबर की शीट है, ठीक है, रबर की शीट, उसको तुम लोग 3-4 लोग मिलके अगर खींचोगे और उसको ऐसे बीच में से टच करोगे तो वो एकदम टाइट हो जाता है। तुमने देखा है वो? नहीं। एक मिनट, एक मिनट। टेंशन इन membrane। तुमने ये इन्फ्लेटेड बलून देखा है, फुगाया हुआ? यस। और ये इसके बाजू में देख रहे हो बलून जो इन्फ्लेटेड नहीं है, हाँ। वो कैसा कैसा दिख रहा है? दिख रहा है उसमें कोई ऐसा टेंशन लग रहा है क्या? खिंचाव नहीं, नो। ऐसा ऐसा लूज लग रहा है, लूज, और एकदम टाइट लग रहा है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ। ये जो टाइटनेस है ना, टाइटनेस, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सो जो टेंशन वर्ड आया है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड टाइटनेस। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पढ़ोगे ना, बहुत इजी भी है। सो टेंशन इन सरफेस इज सरफेस टेंशन, बट टेंशन वर्ड कहां से आया है? टाइटनेस। टेंशन मतलब टाइटनेस। इन्फ्लेटेड बलून में जो होती है वैसी टाइटनेस। इन्फ्लेटेड बलून मतलब बलून जिसमें हम लोग हवा भरते हैं, फुल हवा भरते हैं, उसकी सरफेस पूरी टाइट हो जाती है, मतलब उसमें टेंशन आ जाता है, मतलब उसकी सरफेस के पास टेंशन है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो ये लेफ्ट वाला बलून और ये राइट वाले बहुत सारे खाली बलून, इनमें से सरफेस टेंशन ज्यादा किधर है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में, ऑफ कोर्स। तो यू कैन इमेजिन कि सरफेस टेंशन इज एसोसिएटेड विद द टाइटनेस इन द सरफेस। बट हम लोग यहाँ पे बलून की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिक्विड सरफेस की बात कर रहे हैं। लिक्विड सरफेस में भी टेंशन होता है। तो ये अगर तुम्हें इमेजिन करना है ना, या इमेजिन नहीं, खैर एक्सपेरिमेंट करना है, तो यू कैन डू दैट। what you can do is you can just put your finger in the on the top surface of the liquid। ठीक है, एक ग्लास ले लो। एक मिनट, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूं इसका। नीडल ऑन वाटर सरफेस, ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, एक चीज दिखाता हूं मैं। एक नीडल है, इसको पानी के सरफेस से ऐसे हल्के से रखोगे ना तो ऐसे फ्लोट होती है। एक मिनट, इसको मैं जूम करता हूं। ठीक है, ये नीडल है, इसको पानी के ऊपर रखा है और ये ऐसा फ्लोट कर रहा है। कभी भी तुम पानी के ऊपर वाली सरफेस देखोगे ना तो उसपे एक टेंशन डेवलप्ड रहता है। तुम अपनी फिंगर ऐसे हल्के से रखोगे ना तो पानी ऐसे नीचे की तरफ डिप करेगा, पानी ऐसे नीचे की तरफ दबेगा।
फिर तुम अपना फिंगर अगर फोर्स से डालोगे तो पानी के अंदर चला जाएगा, तुम्हारा फिंगर गीला हो जाएगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर तुम हल्के से पानी के ऊपर हाथ रखोगे ना तो योर फिंगर्स विल जस्ट डिप इन, और पानी ऐसा, पानी का सरफेस ऐसा नीचे की तरफ डिप्रेस होगा। ठीक है, पानी का सरफेस नीचे की तरफ डिप्रेस होगा। आई ट्राई टू शो यू फ्रॉम, यू सी दिस हाउ दिस फिगर इज। Yes. पानी का सरफेस ऐसा नीचे जा रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज हैपनिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये देखो, एक वो यू पिन है, उसको भी पानी के ऊपर फ्लोट करवा रहे हैं। ये देखो, ये कीड़ा दिख रहा है, पानी के ऊपर Yes, फ्लोट हो yes, रहा है। ऐसे देखे होंगे तुमने कीड़े कहीं ना कहीं। यू सी yes, हाउ दिस वाटर सरफेस इज डिपिंग इनसाइड। ऐसा नहीं yes. लग रहा है कि ये सब बलून की टाइट सरफेस है? मतलब जो बलून में हाँ, टेंशन था वैसा ही सरफेस टेंशन यहाँ पे पानी में दिख रहा है। डू यू सी दैट? सी, ये देखो yes. कितना ब्यूटीफुल है। दीज आर रियल इमेजेस। ये रियल इमेज है, ये ऐसे पिक्चर नहीं बनाया है ये, दिस इज रियल इमेज। सी, Oh, yes. so this is surface tension. This is exactly what they are trying to teach you. इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। लेकिन सरफेस टेंशन पानी में ना बहुत मिनिमल रहता है, वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। अगर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना तुरंत ब्रेक हो जाता है। सी दिस, कैसा सरफेस टेंशन दिख रहा है, ये देखो। ये तो तुम रियल लाइफ में कर सकते हो नोटिस इसको, लेकिन हमको जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, इसके पीछे का रीजन हमको बताया। तो रीजन ये है कि let me draw it and show you again, or let me just take a nice you can say picture from Google, so that there is no need to surface tension of water. Yes, see this. This is so beautiful. This is exactly what I wanted to show you. गूगल पे पूरा खजाना मिल जाता है। Hey, come on. Yes. Now, just see what I'm trying to tell you. Surface tension मैं तुम्हें समझाता हूँ फिजिक्स में। Do you see that there are many molecules of water throughout the liquid like this? Yes. है ना? देखो आगे भी और बनाया वो लोग ने, मैं भी बनाता हूँ आगे। Now just imagine a water molecule in the middle of water, somewhere over here or somewhere over here. This water molecule is surrounded by other many, multiple, millions of, thousands of water molecules around it. Yes. है ना? And these all water molecules will exert force on each other. ये कौन से फोर्स है पता है? कोहेसिव फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? कोहेसिव फोर्सेस है। तो कोहेसिव फोर्सेस ये एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, यहां पे कोहेसिव फोर्सेस राइट की तरफ एक्सर्ट हो रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सर्ट हो रहे हैं, यहां पे एक्सर्ट हो रहे हैं, यहां पे एक्सर्ट हो रहे हैं। ऊपर की तरफ है क्या कोई कोहेसिव फोर्सेस? नहीं। No. सो यहाँ पे जो फोर्सेस है दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस मतलब जो फोर्स, यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस है। देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कट कर देगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कट करेगा, और ये फोर्स इसको कट करेगा। मतलब ये फोर्सेस क्या एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बट यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स है एक। व्हाट अबाउट ऊपर की तरफ फोर्स? इज देयर एनी फोर्स ऊपर की तरफ? नहीं, ऊपर तो एयर है, एयर को थोड़ी कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कोहेसिव फोर्सेस एयर के साथ तो होते नहीं है। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा कि सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर
नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कहाँ, कौन सी तरफ? नीचे की तरफ। यू सी दिस, ऑल द फोर्सेस आर Yeah. एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसी के लिए जो ऊपर वाली सरफेस है ना वो स्ट्रेच हो जाएगी, बिकॉज दिस अपर फोर्सेस आर मिसिंग ना। तो फोर्स कहाँ पे जा रहे हैं? Yes. नीचे की तरफ। अब जो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है तो वो जो ऊपर की सरफेस है पानी की, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगेगी, जैसे वो बलून बिहेव करता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो नीचे की तरफ उसको जाने नहीं देगी ना, लाइट ऑब्जेक्ट को। नीडल फ्लोट करेगा, वो कीड़ा फ्लोट करेगा, कीड़े के पैर ऐसे दिखेंगे तुम्हें थोड़े से डिप्रेस्ड अंदर की तरफ, बट वो फ्लोट करेगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तुम्हें पता है वो कीड़ा कितना भी ट्राई करे वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना हल्का है, इतना लाइट है, दैट इट कैन नॉट गो इनसाइड। ठीक है, तुम अगर पानी के ऊपर एक पेपर का बोट बना के रखोगे तो वो फ्लोट करेगा। तो उसमें क्या बीच में डेवलप होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द फ्लोटिंग्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि सरफेस टेंशन है। अभी समझ में आया सरफेस टेंशन? डिड यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस Yes. फिगर? Yes, sir. मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है ये सरफेस टेंशन, सेकंड वाले वीडियो में, और मैंने ये सारी चीजें बताई है उसमें। ठीक है, अब देखो सरफेस टेंशन के बाद, लेट मी शो यू वन जिफ ऑफ सरफेस टेंशन इफ आई कैन, बिकॉज दैट विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इधर जाके आई थिंक, Sir, surface tension is only in water or no liquids? no, there is surface tension in oil also, there is surface tension in other liquids also, बट वाटर में ज्यादा, मतलब वाटर में बहुत इजीली नोटिस कर सकते हैं हम लोग, बट मेनी No, they लिक्विड्स। are. या, Sir, they solids or any other नो things. नो नो नो, ओनली लिक्विड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। Okay. या, डू यू सी दिस? Yes. ये जो लिक्विड्स है, लिक्विड के ड्रॉप्स है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कोहेसिव फोर्सेस की वजह से दे स्टिक टू ईच अदर, and they Yes. form this kind of this is not water, huh? This can be any other liquid, but they form these kind of small spherical drops, and these spherical drops are due to surface tension। मतलब जो पानी का ड्रॉप होता है ना, that is due to surface tension। तुमने देखा होगा किसी ऐसे नीडल जैसी जो शेप के कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे हैंग करता है, वाटर ड्रॉपलेट। तुमने देखा है कभी? वो नीचे नहीं गिरता, ऐसे हैंग करता रहता है। तुमने ये प्लांट के साथ देखा होगा, प्लांट के एजेस में ऐसे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, प्लांट के लीव्स के एजेस में, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। Anushri, can you hear me? Yes, sir. I think I got disconnected. Yes. See this.
Did you see that spider? Yes, sir. Yeah, it is walking on water just like some surface. And that is due to surface tension. ये जो insects होते हैं ना, इनकी body hollow होती है अंदर से. इनके पास ये bones नहीं होते, मतलब heavy density वाले नहीं होते, इसलिए ये fly float कर सकते हैं easily. Yes. So on water the surface tension helps them to float a lot. ठीक है, तो I think surface tension तो clear हो गया ना. Yes. ओके, सरफेस टेंशन की वजह से और एक चीज होती है, दैट इज मेनिस्कस. मेनिस्कस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस. कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है मर्क्यूरी में. मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स मेनिस्कस इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी में फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा है. मतलब मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स खुद को ही अपने आपके साथ अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा, रादर अदर देन ग्लास, मतलब इन कंपैरिजन विद ग्लास. बट फोर्स ऑफ अधेशन वाटर में ज्यादा होता है. तो वाटर में कॉनकेव मेनिस्कस बनता है. तो वाटर ग्लास के साथ प्रेफर करना, ग्लास के साथ स्टिक करना प्रेफर करता है. वाटर प्रेफर्स टू स्टिक विथ ग्लास मच मोर देन itself. Mercury prefers to stick with its own kind of molecules, with other mercury molecules more than it does with glass. That's why mercury में convex meniscus बनता है, outward bulge, और water में inward meniscus बनता है, that is concave meniscus, inward bulge. ठीक है, and so that is due to, again यहाँ पे responsible है force of cohesion and adhesion. सरफेस टेंशन में भी रिस्पॉन्सिबल है फोर्स ऑफ कोहेशन एंड अधेशन. लेकिन लेट मी टेल यू द property responsible for surface tension is forces of cohesion. Forces of cohesion means with itself, force of attraction with itself, खुद के साथ force of attraction. ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास दो लिक्विड्स है जिसके यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके बारे में, वाटर एंड मर्क्यूरी. ये मर्क्यूरी का सिंबल है, ठीक है, Hg. वाटर का सिंबल है H2, केमिकल फॉर्मूला है वाटर का. वाटर में फोर्स ऑफ कोहेशन कम होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अधेशन. जस्ट मोमेंट. अनुश्री, यू एबल टू हियर ना? मैंने जो भी बताया तुमने सुना ना? Yes. या वाटर में कोहेशन कम होता है, अधेशन ज्यादा होता है. मर्क्यूरी में कोहेशन ज्यादा होता है और अधेशन कम होता है. मतलब मर्क्यूरी खुद के साथ स्टिक करना ज्यादा प्रेफर करता है रादर देन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, तो मुझे बताओ सरफेस टेंशन दोनों में से ज्यादा किस में रहेगा, वाटर में या मर्क्यूरी में? Water. फिर से सोचो, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से. प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन इज फोर्सेस ऑफ कोहेशन. सरफेस टेंशन ज्यादा होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? कोहेशन. ठीक है, तो कोहेशन के जो फोर्सेस है वो वाटर और मर्क्यूरी में कंपेयर करो, जिसमें कोहेशन ज्यादा उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा. बताओ किसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा? Mercury. यस, मर्क्यूरी में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा. वाटर में सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली कम होता है. ठीक है, क्योंकि वाटर में फोर्सेस ऑफ कोहेशन छोटे होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू मर्क्यूरी. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. ओके, नेक्स्ट, ये तो मेनिस्कस भी हो गया अपना. नेक्स्ट है लिक्विड प्रेशर, गैस प्रेशर,
ओके, एंड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अनुश्री, तुमको स्विमिंग आता है क्या? Yes, sir. अरे वेरी नाइस यार। तो द नेक्स्ट टॉपिक यू विल इजीली अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तुमने अंडर वाटर स्विमिंग किया है कभी? Yes. अंडर वाटर में ऐसा तुम्हारे सिर पे ऐसा ऐसा एक प्रेशर फील होता है क्या पूरे बॉडी पे? Yes. हाँ, वो ऊपर सरफेस पे नहीं होता है, डजंट हैपन। ये सिर्फ अंडर वाटर होता है। सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। लिक्विड क्या करता है पता है? लिक्विड हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, एवरी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, हर डायरेक्शन में लिक्विड का पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और ये फोर्स इंक्रीज होता है एज यू गो डाउन। मतलब तुम जितना नीचे जाओगे, नीचे वाले पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल की वजह से नीचे वाले पार्टिकल पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो लिक्विड एक्सर्ट्स मोर प्रेशर एज यू गो डाउन। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। ये तो लिक्विड की बात हो गई। अच्छा, लिक्विड्स अपने कंटेनर के वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मतलब अगर तुमने यहाँ पे होल कर दिया, सपोज यू मेड अ होल हियर, तो क्या होगा पता है? ये लिक्विड ऐसे बाहर आएगा यहाँ से, Yes. ऐसे गिरेगा नीचे विद अ प्रेशर। सो ये लिक्विड प्रेशर की वजह से होता है। इसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा दिया नहीं है। हाँ, बट देन अदर थिंग विच इज गैस प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जो जिसमें गैसेस के पार्टिकल्स हैं, और ये कंटेनर ऊपर से लॉक कर दिया मैंने, बंद कर दिया। ठीक है, और ऊपर मेरे पास एक हैंडल है जिसके ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं? पिस्टन। तुमने देखा होगा ये जो इंजेक्शन का सिरिंज होता है ना, उसमें भी ऐसा Yes. पिस्टन होता है। फिर तुम्हारी पिचकारी होती है, पिचकारी, उसमें भी ऐसा सिरिंज होता है। ठीक है, और सॉरी, इसमें भी ऐसा पिस्टन होता है। और पिस्टन किस में होता है? हाँ, आई थिंक ये दोनों चीजों में पिस्टन होता है। पिस्टन को अगर नीचे पुश करेंगे ना, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या करेंगे पता है? दे विल ऑल कम टुगेदर। मतलब आफ्टर पुशिंग इट डाउन, अगर पिस्टन यहां पे तुम लेके आते हो पुश करके, फोर्स एक्सर्ट करके, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। मतलब गैस प्रेशर इंक्रीजेस। बट गैस प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ? यहां पे जो स्पेस था, यू सी द स्पेस, दिस इज द स्पेस, Yes. एंड यहां पे देखा स्पेस क्या हो गया? व्हाट हैपेंड टू द स्पेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर? Oh, space कम हो गया. स्पेस कम हो गया, मतलब वॉल्यूम, स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, डिक्रीजेस। अगर तुम गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर एक्सर्ट करके उसके वॉल्यूम को कितना भी कम कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस, द पार्टिकल्स दे कम टुगेदर एंड फाइनली दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वो लिक्विड बन जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं पार्टिकल्स that the intermolecular spaces become so less that they get converted into liquid। और इसका एक एग्जांपल अभी तुम्हारे घर पे है, और उसको बोलते हैं एलपीजी। यू नो व्हाट इज एलपीजी? Yes. क्या? Liquid purified gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Okay. सिलेंडर आता है ना गैस का, खाना बनाने के लिए, देखा है तुमने सिलेंडर? Yes. ये सिलेंडर के अंदर क्या होता है? गैस होता है, बट ये कौन से फॉर्म में होता है पता है? लिक्विड। यहाँ पे ऊपर एक नॉब रहता है, यू माइट हैव सीन, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर बोलते हैं ना। Yes. वो रेगुलेटर को तुम ऑन करते हो ना, तो ये गैस बाहर आता है, एंड व्हेन द गैस कम्स आउट इट बिकम्स गैस, इट बिकम्स अ गैस।
अंदर लिक्विड होता है, जब बाहर आता है तो गैस बन जाता है, बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर व्हेन यू ओपन द रेगुलेटर. ओपन रेगुलेटर मीन्स प्रेशर इज लेस, तो लिक्विड वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है. बट जब तुम रेगुलेटर को बंद रखते हो तो ये अंदर लिक्विड ही रहता है. ठीक है. सो गैसेस कैन बी प्रेशराइज्ड एंड देयर वॉल्यूम्स कैन बी डिक्रीज एंड दे कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड. तो इसके बारे में बताया है तुम्हें यहाँ पे. Effect of reducing volume on a gas on pressure in a cold vessel. Yes. ठीक है. And then you have heat conduction and heat convection. Let me talk about that. Conduction. Okay, suppose I have a rod. ठीक है, मेटल का रॉड है और यहाँ पे सब पार्टिकल्स है मेटल के. ठीक है. सपोज आई हीट इट फ्रॉम हियर. ठीक है. सपोज इफ आई हीट इट फ्रॉम हियर, व्हाट विल हैपन टू दिस पार्टिकल? याद रखना ये सॉलिड है, सॉलिड मेटालिक रॉड. व्हाट विल हैपन टू दीज पार्टिकल्स? Let me tell you what will happen to the kinetic energy of these particles. Solids के पास kinetic energy होती है ना, I told you ना that. Yes. Yeah, what will happen to the kinetic energy? Remember that I have told you that solids have kinetic energy which is minimum. ये देखो, kinetic energy is the third one which is minimum over here. So kinetic energy का मतलब क्या है? The particles they continuously are in random motion. They are in continuous random motion. तो मतलब यहाँ पे ये जो solid है उसके particles random motion तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ vibrate करेंगे. But when I give heat, the temperature increases. ठीक है. अगर temperature increase होता है तो kinetic energy में क्या फर्क पड़ेगा अनुश्री? The kinetic energy will increase. वेरी गुड. टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये जो वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस ये भी इंक्रीज होते हैं. मतलब ये पार्टिकल्स और वाइब्रेट करने लगते हैं. व्हेन दे वाइब्रेट दे पुश ईच अदर. और हमें ये पार्ट को अगर हम टच करेंगे ना तो हमें हॉट फील होगा. दैट हीट व्हाट यू फील ना, दैट इज हाई काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, हाउ? अच्छा, if I heat it from here, will I feel it at this end after some time? Yes. Means the heat will be conducted, you are saying, in this direction. Yes. मतलब solid metallic rod will be able to conduct the heat from hot end to the cold end, right? Yes. So how does the heat Yes. flow from here to here? हीट कैसे फ्लो होगी यहाँ से यहाँ पे? Through vibration. एग्जैक्टली. ये वाइब्रेट होगा, फिर ये वाइब्रेट होगा, फिर ये वाइब्रेट होगा, एंड देन द वाइब्रेशंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड. वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाएंगे. ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेंगे लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं. सो द वाइब्रेशन विल कैरी फॉरवर्ड एंड द हीट विल फाइनली रीच एट दिस पॉइंट, एंड आफ्टर सम टाइम दिस एंड विल ऑल्सो बिकम हॉट. If you touch it, initially it will be cold, but eventually it will become very, very hot, because through vibrations, the kinetic energy is, you can say, conducted from hot direction to cold direction. So this is known as conduction. Conduction किस में होता है? Solids में. Solids में heat conduct होती है. But what about liquids? ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ से हीट करता हूँ लिक्विड को, what will its molecules do? You know what will happen? Some molecules will heat up over here and they will travel to the top, क्योंकि they will become light ना.
after heating, Anushri? Yeah. Yeah, so they will go to the top. और जो उसके ऊपर वाले cold particles है ना, वो नीचे आएंगे. Cold particles will come down Okay. and they will get heated. फिर वो heat होके वो भी ऊपर चले जाएंगे. So some particles are going up regularly and some particles are coming down regularly. Going up, coming down. मतलब लिक्विड में ऐसा एक करंट सेटअप होगा. करंट मतलब फ्लो. कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं. हीट हो रहे हैं, कोल्ड वाले नीचे आ रहे हैं, और हीट हो रहे हैं, कोल्ड वाले नीचे हो रहा है. ये कब तक होता रहेगा पता है? जब तक पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरे वाटर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक. सो दिस इज नोन एज कन्वेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज सेम एज कंडक्शन. ठीक है, सिर्फ कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होता है और उससे हीट कंडक्ट होती है. बट कंडक्शन में पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं. They just vibrate in their own position and they conduct heat. Convection में the heat is actually carried from one point to the another in a liquid or gas through the molecules. ठीक है, so this is convection. हवा में तुमने देखा होगा, have you read about land breeze and sea breeze? Yes, sir. कैसे होता है पता है ये? Yes, sir, through evaporation and conduction. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. सपोज ये है सी और ये है लैंड. ठीक है, Yes. तो इन द मॉर्निंग टाइम लैंड गेट्स हीटेड अप क्विकली. हीटेड अप क्विकली इन द डे टाइम. जब लैंड क्विकली हीट अप होगा तो इसके ऊपर की एयर ऊपर चली जाएगी. इट विल बिकम लाइट ना, तो द एयर विल हीट अप एंड इट विल गो अप. अब यहां पे इसकी जगह लेने के लिए सी से कोल्ड एयर अंदर की तरफ आएगी. द कोल्ड एयर फ्रॉम सी विल टेक इट्स प्लेस, सो यू विल फील सी ब्रीज कमिंग इन द डे टाइम. बट नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में द होल सी वुड हैव बीन हीटेड अप वेरी मच. पूरा सी नाइट टाइम में हीट हो जाएगा. मतलब क्यों? पूरा दिन उसने हीट लिया ना, पूरा दिन उसने सन के हीट को एब्जॉर्ब किया. तो नाइट में सी बिकम्स मोर हॉट एंड लैंड गेट्स कूल्ड क्विकली एंड सी इज हॉट एट नाइट. ठीक है, तो सी के ऊपर की एयर सारी ऊपर चली जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए लैंड से सी की तरफ एयर आ जाएगी, ठंडी हवा. तो लैंड ब्रीज वी कैन फील इन द नाइट, सी ब्रीज वी कैन फील इन द मॉर्निंग. और दिस इज हैपनिंग ड्यू टू कन्वेक्शन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया. कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद हीट को ट्रांसफर करते हैं एंड दैट हैपेंस इन लिक्विड्स एंड गैसेस. सो दैट इज हीट कन्वेक्शन ऑफ काइनेटिक मॉडल. ठीक है, अभी तेरा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा सब कुछ. नेक्स्ट पार्ट इज चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग काइनेटिक थियरी. ठीक है, सो आई होप that now you will be able to answer these questions. Yes, sir. See, I'm going to take this discussion, doubt solving and quiz of this part as well as the next part on Saturday. Saturday हम लोग का डाउट सॉल्विंग रहता है ना, या लास्ट सैटरडे हमने किया था. Yeah, so Yes. this Saturday we are going to do it again, and this Saturday you should be prepared with the first part because we have done it very nicely, and again even after the video I have done it again for you, so that I expect that you will be ready with this. तो तुम्हारा मैथ्स का तो होमवर्क है ही, साथ में ये एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हो तुम. Yes. दिस इज योर होमवर्क फॉर सैटरडे. मतलब तुम्हें सैटरडे से पहले ये भी कंप्लीट करना है. इसमें स्टडी क्वेश्चन है 10, मैच द फॉलोइंग है, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है. यू हैव टू डू एवरीथिंग. क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट एवरीथिंग बी इन Yes. फिजिक्स नोटबुक. ओके अनुश्री? Yes, sir. Great. So I hope that this was, you understood everything, na Anushri? Yes, sir. Surface tension and everything. Yes. Great. Okay, Anushri, I will see you on Saturday, and be ready with the homework of maths and physics part 1. All right? Yes. Okay, bye. See you later. Bye. Thank you.